Good morning, students. In the previous video, we have to done exercise 3.3 question number 1 and question number 2 first and third part. Now we have to start question number 2 fifth part, and I hope you have learned all properties of parallelogram, rectangle, square, rhombus, kite, trapezium, etc. Because without learning these properties you can't done the questions. So please revise properties. And now we have to start fifth part. The naming of the figure is not given, but to simplify the question, we naming the figure self. A, B, C, D is a parallelogram in which we have to find out x, y and z. The angle is 112 given, and we can say that these two angles are opposite angles of a parallelogram. And what is the property of opposite angles of parallelogram? Yes, in a parallelogram opposite angles are equal. In a parallelogram opposite angles are equal. So in parallelogram, it is a short form of parallelogram. In parallelogram A, B, C, D, angle D and angle B both are equal. So angle Y equal to 112 degree. Okay, now we have to calculate x. We consider that in this triangle two angles are known, and we have to find out third angle using angle sum property of triangle. So in triangle ACD, using angle sum property, angle A, angle C, angle D equal to 180 degree. Remember, if we mention the naming of the triangle, then angle A represent only this angle. If we call parallelogram ABCD, then angle A represent this angle. But because we already mentioned the name of the triangle, so angle A mean ये वाला angle, angle C this angle, and angle D this angle. Sum of these three angles equal to 180 degree. We put value of angle A and value of Y we have already find out. Then x equal to 28 degree. Now we have to find out Z and x. If we consider that the shape like a Z, and these two angles are alternate interior angle in which these two lines are parallel and it is a transversal. So because ABCD is a parallelogram, so AB parallel to CD and taking AC as a transversal. थोड़ा क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे साइड में फिगर ड्रॉ कर दी. ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल. सो दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. Z equal to x and x already find out 28 degree, so Z equal to 28 degree. I hope you understood. We have done first, third and fifth part. Remaining two parts do yourself. If you have any problem, you consider with me. Please note down it. Okay students, now we have to do question number 3. In the question number 3, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? इट्स मीन हम क्वाड्रिलेटरल ABCD को पैरेललोग्राम तब कॉल करेंगे अगर वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करें. इट्स मीन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल. अगर वो इन्हें फुलफिल करता है तो हम इसे पैरेललोग्राम कॉल करेंगे. इन द क्वेश्चन 3 पार्ट्स आर गिवन. हम इन 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम अगर फुलफिल कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम है, अदरवाइज नहीं है. फिलहाल हमने ABCD एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है. पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं. ओके,
Now start first part. In the first part, it is given that angle D और angle B का सम 180 डिग्री है. इसमें वो ये कॉल कर रहा है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है. अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब यहाँ पे दोनों का सम 180 डिग्री है. इट्स मीन यहाँ पर कंफ्यूजन है माइंड में. ये दोनों एंगल इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि इसने पूरा तरह से शो नहीं करा. उसने ये कह दिया कि दोनों का सम 180 डिग्री है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन अ कोऑर्डिनेटर, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेटर. इन अ कोऑर्डिनेटर ABCD, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री. इट इज गिवन देन these two angles are equal is not sure. Is not sure. So coordinator ABCD can be a parallelogram but need not be. मतलब हम पक्का नहीं कह सकते, हाँ ये पैरेललोग्राम हो सकता है. ओके, सेकंड पार्ट, AB एंड DC. AB एंड DC दोनों की वैल्यू 8 सेंटीमीटर. ओके, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहाँ पर फुलफिल हो रही है. AD 4 सेंटीमीटर बट BC 4.4 सेंटीमीटर. अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, उसमें दोनों साइड्स को स्टार्ट के दोनों पेयर इक्वल होने चाहिए. बट इन दिस पार्ट वी स्टडी दैट अपोजिट साइड का एक पेयर तो इक्वल है लेकिन दूसरा पेयर इक्वल नहीं है. इन कोऑर्डिनेटर ABCD वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड, यहाँ पे आप बट लिख सकते हो, बट अनदर पेयर नॉट इक्वल. सो कोऑर्डिनेटर ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम. ये पक्का श्योर है कि पैरेललोग्राम नहीं होगा. ओके, थर्ड पार्ट, एंगल A 70 डिग्री एंड एंगल C 65 डिग्री. तो यहाँ तो एकदम क्लियर है भाई, कोऑर्डिनेटर में अगर पैरेललोग्राम ये होता तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते, बट अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल. इन कोऑर्डिनेटर ABCD अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो कोऑर्डिनेटर ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम. इट इज श्योर. आई होप यू अंडरस्टूड. नोट डाउन इट. Okay students, now we have to start question number 5, last question of this video. In the question, the measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. We know that in a parallelogram there are 1, 2, 3, 4 pairs of adjacent angles, but we have to consider only one pair of adjacent angle. So we have to consider angle B and angle C. पहले क्वेश्चन में दे क्या रखा है? टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2. फाइंड ईच एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एंगल B एंड एंगल C. ये हमने लेट कर लिया. चॉइस है आपकी, आप इन दो एंगल को कंसीडर कर सकते हो, ये दो एंगल या ये दो एंगल, लेकिन करने आपको एडजेसेंट एंगल ही है, ये याद रखना. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल B रेशो एंगल C इक्वल टू 3:2, एंड यू नो दैट इफ वी रिमूव द रेशो देन वी यूज अ वेरिएबल. एंगल B इक्वल टू 3x, देन एंगल C इक्वल टू 2x. वी नो दैट व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. यस, इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मीन उनका सम 180 डिग्री होता है. देखो, आपको हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लिखनी है. लिखोगे, याद होगी, उतना ही आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा. सो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री. आफ्टर कैलकुलेशन x इक्वल टू 36 डिग्री. एंगल B 3x हमने लेट किया था, तो एंगल B की वैल्यू 108 डिग्री. एंगल C इक्वल टू 2x, तो एंगल C इक्वल टू 72 डिग्री. नाउ एंगल B हमारे पास 108 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 72 डिग्री. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रिमेनिंग टू एंगल्स. ऑब्वियसली वेरी सिंपल.
angle D with the help of angle B you can find out. In a parallelogram opposite angles are equal, so angle D equal to angle B, angle D की वैल्यू 108 डिग्री। सिमिलरली क्योंकि हम इसी प्रॉपर्टी का यूज दोबारा कर रहे हैं तो हम एक बार भी लिखेंगे, मतलब काफी है, दोनों दो इक्वल हो गए तो एंगल ए की वैल्यू आल्सो 72 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड, नोट डाउन इट। थैंक यू।